गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स. दिस इज डिस्कशन ऑन द टेस्ट दैट आई हैव गिवन यू. जो टेस्ट दिया था उसका डिस्कशन करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि देयर इज अ थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू इट इज आल्सो गिवन दैट दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो आपको ये करना था कि सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है 2x plus ay plus 3z is equal to 5. Okay. We can name this as plane 1 because in 3D this is plane 1. In plane 2 is 3x plus 2y plus cz is equal to 8. अगर आप डिटरमिनेंट से करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा. So I'll give you another method p1 p2 p3. Okay. bx plus 3y plus z is equal to 9. And suppose करो if you can write p1 plus lambda p2. अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि p1 plus lambda p2 is equal to p3, then they will have infinitely many solutions. So you have to find lambda and then substitute and get the value of a b and c. Okay. तो lambda कैसे निकालते हैं? आपको कांस्टेंट इक्वल कर लेना है. तो सपोज करो यहाँ से निकाल लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 plus 8 lambda, 5 plus 8 lambda is equal to 9. As you can see 5 plus 8 lambda is equal to 9. So 8 lambda is equal to 9 minus, suppose it is 4, and lambda is equal to half. So once you get the lambda, now you can just multiply everything by lambda and get a, b and c. So the first one will be 2 plus 3 lambda. 2 plus 3 lambda is equal to b. So what is lambda? Suppose half. You can just check. Okay, 9 minus 5 4. Okay. So suppose this is the answer. So lambda 3 lambda is equal to b. Now substitute lambda here. So you get 2 plus 3 by 2 is equal to b, right? So b is equal to 4 plus 3 7 by 2. So b is equal to 7 by 2. Okay, this way. And suppose now you have to find what is a. So you write a plus 2 lambda. A plus 2 lambda is equal to 3. And what is lambda? Lambda is half. So you write here a plus 1 is equal to 3. So a is equal to 2. That's it. A is equal to 2. And here you have to find c. So c is equal to 3 plus c lambda. 3 plus lambda c is equal to we get 1. Okay, comparing z. So lambda is again half. So 3 plus half is 7 by 2. 3 plus c by 2 is equal to 1. So 1 minus 3 is minus 2 and minus 2 into 2 is minus 4. So c is coming out to be minus 4. That's it. So these are the answers for a, b and c. That a is 2, b is 7 by 2 and c is minus 4 for infinitely many solutions for this system. So this is another method. This method you will not find in books. In books you will find delta 1, delta 2, delta 3. तो ये वाला मेथड आप कर सकते हो. ठीक है, अगला मेथड देखते हैं हम. जो क्वेश्चन 2 आया था, बेसिकली क्वेश्चन 2 क्या था देख लो. क्वेश्चन 2 था हाँ, so very good question if you can understand. Determinant of a is 5. Okay, there are two matrices of order 3. You multiply them and you get 2i. So separate the determinants. So use the rule of determinants. Determinant a into determinant b is equal to 2 into determinant i. Okay, now this is happening. 2i means how many times 2 will come out? It will, because order is 3, no, this is i3. So for determinants it will come 2 times. So we will write 2 cube i. So determinant a is 5 and determinant b is b and this is 8. Determinant I is 1. Okay, so determinant b is 8 upon 5. So you have to write what is adjoint of b. Now there is a property, adjoint of any matrices, determinant is equal to determinant of that matrix is raised by n minus 1, where n is the order. So here the order is 3 minus 1, so you just have to square this. So the answer is 8 by 5 square. So the answer is 64 by 25. So that will be the answer. Question number 2, 64 by 25. Okay, let's see question number 3 here. Question number 3, you were asked to find the characteristic equation. So characteristic equation, and you have to find the value of lambda and mu. One method is you put the, so this was already given to you, a square plus lambda a plus mu I. ठीक है, ये दिया हुआ है, and this is given to us. And you have to find lambda and mu. Some students have substitute the value, find a square a and then substitute the value.
Another way is if you do like this, a minus lambda I is equal to 0, something like this. This lambda I could be different from this one, so you can write lambda 1 I. From here, whatever lambda you get, in lambda 1 you will get an equation, and that will be characteristic equation. So how does that, what does that mean? Suppose we write 2 3 5 minus 2, सपोज करो हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 1, और इसका डिटर्मिनेंट हम 0 कर दें, इसका डिटर्मिनेंट हम 0 कर देते हैं, तो बेसिकली क्या मिलेगा 2 माइनस लैम्डा 1, 2 माइनस लैम्डा 1, इधर मिलेगा 3, इधर मिलेगा 5, और इधर मिलेगा -2 माइनस लैम्डा 1। इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए हमें, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा 1 एंड दिस इज 2 प्लस लैम्डा 1, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -15, ओके, -15 इज इक्वल टू 0, तो माइनस साइन हटा देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, प्लस बना देते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा 2 और 2 4, 4 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0, तो मेरे ख्याल से उधर जाके आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो आगे आपके पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 19 आई इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट लैम्डा एज 0 एंड म्यू एज -19, और आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका, ठीक है। Next, one more question I'll tell you, question number 4, and fifth one was very easy, so we can leave that. So fourth question is this one, determinant of A is 10, okay, and what is adjoint of A inverse? Determinant of adjoint of A inverse. So first you you use this, A into A inverse is I, apply determinants on both sides is equal to 1, okay. So determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A, so that is 1 by 10, and adjoint I have just told you, it is just n minus 1, so adjoint of A inverse is equal to determinant of 1 by 10 into 2 n minus 1, that is 1 by 100. So these are the 4 questions of your test. I hope you will now understand them and will be able to solve them next time. So those are given answers, very good. Those are not given answers, start writing the answers, because this is the only way you can improve, okay. So now we come to again our topic, inverse trigonometric functions. आज 2-3 आइडेंटिटीज और देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, तो बेसिकली देख लेते हैं इनको क्या है। एक तो है आपका, सपोज करो ये 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, तो ये tan इनवर्स के लिए भी होता है, sin इनवर्स के लिए भी होता है, cos इनवर्स के लिए भी होता है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आइडेंटिटी बन रही है। 2 tan इनवर्स होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने सीखा होगा कि x अगर tan थीटा लेते हैं अपन, सपोज करो ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, x इज इक्वल टू tan थीटा ले लो, ठीक है। तो RHS क्या रहेगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा। और tan इनवर्स tan कर सकता है एक तरह से, डोमेन में अगर हो तो आंसर आएगा 2 थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो हम आंसर लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। प्रूव करना तो बहुत आसान है, पर इसका डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि ये किस के लिए, यहाँ पे कहीं पाई तो नहीं लगेगा, माइनस पाई तो नहीं लगेगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, तो x पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, all that we have to see considering small numbers and the range of tan inverse, and here the range of tan inverse is, see, minus pi by 2 pi by 2, but if you multiply by 2 you will get something like what you will get minus pi to pi, and here you will get minus pi by 2 pi by 2, so they are not matching, okay। तो आपको वो सब अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक 3 आइडेंटिटीज बता देता हूँ। तो पहला आ रहा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सपोज करो सेम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से आता है, आपको पता है x क्या होता है, tan थीटा लेते हैं, सपोज वी टेक x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या मिलेगा इसमें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, ठीक है। तो वापस आपको 2 थीटा मिल गया, और 2 थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो ये आपने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी।
और इसी तरह से 2 tan इनवर्स x की एक और आइडेंटिटी है, तो 3 आइडेंटिटी से बनाई। देखते हैं व्हाट इज द थर्ड वन ये 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स you can write 1 minus x square upon 1 plus x square, something like this, okay। तो ये भी एक आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x के लिए। इफ यू राइट x इज इक्वल टू tan थीटा, सपोज यू राइट x इज इक्वल टू tan थीटा, अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा cos 2 थीटा होता है ना। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। तो इस पर डिपेंड करता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। x अगर ढंग से आपने यूज कर लिया, सपोज करो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r ले लिया, तो नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यहाँ पर मान लो x है, नेगेटिव आ गया, x इज इक्वल टू -1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स -1, तो इसका आंसर तो आपके पास सीधा सा tan इनवर्स -1 होता है क्या, -π/4, तो ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, ये तो कभी नेगेटिव एंगल देगा ही नहीं, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो बन गया cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 को आप क्या लिखोगे, cos इनवर्स 0 होता है 0 से पाई में पाई, तो एक तरफ तो आ गया -π/2 और एक तरफ आ गया पाई, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो। यू विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट, तो आपको कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, देखते हैं। एक वैल्यू और लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो आपके पास x इज इक्वल टू -√3 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -√3 आ गया, तो अब इसका वैल्यू क्या जाएगा 2 tan इनवर्स -√3, और -√3 का मतलब एंगल कहाँ चले गए, एंगल चले गए आपके पास 2 tan इनवर्स -√3 मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू डबल -60 इंटू डबल -120 डिग्री, तो ये हो गया -2π/3 LHS में। और वहाँ पे देखते हैं cos इनवर्स 1 - 3 अपॉन 1 + 3 स्क्वायर, ठीक है, 1 + 3, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -2 अपॉन 4, तो cos इनवर्स -हाफ। अच्छा, cos इनवर्स नेगेटिव के लिए अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और हाफ होता है 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो ये तो आ गया आपका एग्जैक्टली पाई माइनस π/3, that is 2π/3, and this is -2π/3, they are not equal, so you will have to put some negative sign whenever x is less than 0 here, but what is that range, that also you have to look, -1 से कम है, -1 से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके और फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, पाई, माइनस पाई, ये 4 चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। उन 4 चीज़ों को यूज़ करके आप इनको एडजस्ट करोगे बाद में, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में तो आप ऐसे मिलते हो, ये 3 ही आइडेंटिटीज हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैम, ठीक है। देयर आर 3 more आइडेंटिटीज आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सपोज करो आपके पास ये आता है, अभी हमने देखा कि tan इनवर्स of a negative number, ठीक है, x, if x is less than 0 then you get what, you can directly write this as minus tan inverse x, no problem, ठीक है। tan inverse x अगर नेगेटिव है, सपोज करो -2 है, तो हम लिखेंगे tan inverse 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से sin इनवर्स, सपोज sin इनवर्स -½ है, तो इसको ले देंगे -sin इनवर्स ½ कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर cos इनवर्स -½ आता है, तो आप इसको -cos इनवर्स ½ नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स ½ आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस cos इनवर्स ½ so this is a very important one for cos, for sin and tan this is same। इसी तरह से cosec और cosec के लिए भी ये सेम रहेगा, लेकिन cot के लिए भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। cot इनवर्स में भी सपोज करो नेगेटिव आता है, तो पाई माइनस cot इनवर्स √3, cot और sec, cos और sec में आपको पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और tan, sin और cosec में आपको माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। सो दीज आर 3 थिंग्स आई एम राइटिंग देम अगेन। यहाँ से देखो, अगर थीटा नेगेटिव है तो क्या होता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ tan इनवर्स, ठीक है, -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, ओके।
this way. Sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x. But now comes cos. Cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. Sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. And cot inverse minus x is equal to pi minus cot इनवर्स x. तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट है कॉस का वो होता है 0 से पाई, इसका भी 0 से पाई और इसका भी 0 से पाई, बट इन तीनों का आउटपुट जो होता है वो होता है माइनस पाई/2 से पाई/2, इसलिए हमने ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो इन पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हो अपना इन आइडेंटिटीज को यूज करके, एंड यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, ओके। So you should try 2.1. I'm giving you that as homework, and then we'll discuss all the questions of 2.1 in the next class, right? So see you in the next class.